Hello everyone, this is Dr. Manoj Thakur and I welcome you all to Environment Matters. In this part of energy resources, we are going to discuss about non-renewable energy resources यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो आज हम बात करने वाले हैं जितने भी अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं जैसे पेट्रोलियम, कोयला, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। क्या इन रिसोर्सेज की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, क्या उनका करंट स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल स्टेटस एज वेल एज देयर स्टेटस एट इंडिया लेवल। देन वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर इम्पैक्ट्स, their advantages and disadvantages. Then in the end we are going to discuss about the growing energy needs and what steps we can take to ensure our energy security. So let's start with today's topic. This is Dr. Manoj Thakur and I welcome you all to Environment Matters. Today we are going to discuss about the non-renewable energy resources, and before this we have already covered all the different types of renewable energy resources in our previous lectures. So let's start with today's topic on non-renewable energy resources. So first of all, let's start with the definition. What are non-renewable energy resources? Non-renewable energy resources are those energy resources which cannot be replenished within human timescales. Means they take millions of years in their formation through a process of complex geological processes. तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो मानव समय में जो है दोबारा से निर्मित नहीं हो सकते या रिप्लेनिश नहीं हो सकते। उनको बनने के लिए करोड़ों सालों वर्षों का जो है वो समय अवधि लगती है, जिसकी वजह से उनको हम अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। मुख्यतः वी हैव 4 types of non-renewable energy resources. The first one is your coal, that is koila. Second one is your oil, crude oil, that is petroleum. And third one is your natural gas. And the fourth one is your nuclear energy. So first of all, let's start with the first non-renewable energy resource, that is coal, जिसको कि हम हिंदी में कोयला कहते हैं। So coal is basically a fossil fuel that is formed from the remains of prehistoric plants that lived on this planet Earth millions of years ago. Over a period of time, due to the conditions of very high heat and pressure from the Earth's crust, these plants were converted into carbon-rich sedimentary rock that we call coal today. तो कोल जो है एक जीवाश्म ईंधन है जो कि इस पृथ्वी पर जो करोड़ों साल पहले जो प्लांट्स पाए जाते थे उनसे बना है, और जब इन प्लांट्स की जो है मृत्यु हुई, डेथ हुई, तो ये प्लांट्स जो है धरती के नीचे दब गए, और धरती के नीचे दबने से जो अर्थ क्रस्ट में जो हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर की जो कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से दीज प्लांट्स वर कन्वर्टेड इनटू कार्बन रिच सेडिमेंट्री रॉक, जिसको कि हम आज की डेट में कोयला कहते हैं। और ज़्यादातर ये प्लांट्स जो हैं लगभग 350 से 300 मिलियन ईयर एगो जो हैं इस अर्थ के ऊपर जो हैं पाए जाते थे। सो इन दिस पिक्चर यू कैन ऑल्सो सी जो सबसे बिल्कुल रॉ फॉर्म होती है इन प्लांट्स की, जब फ्रेशली और पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर आपका पृथ्वी के नीचे दबता है, तो दैट इज बेसिकली नोन एज पीट। और समय के साथ ये कोल की डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होता रहता है, जैसे पीट के बाद लिग्नाइट बनेगा, लिग्नाइट के बाद सब बिटुमिनस बनेगा, सब बिटुमिनस के बाद बिटुमिनस और लास्ट में एंथ्रासाइट। तो ये जैसे जैसे समय बीतता गया और हीट और प्रेशर जो है वो बढ़ता गया, उसके साथ ही ये कोल की डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं पृथ्वी के नीचे बनती गई। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ कोल, यानी कि कोयले के जो प्रकार हैं। तो कोल इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स। First one is peat, second is lignite, third is bituminous coal, and the fourth is anthracite coal. तो जो peat है that is the lowest form of the coal. It is basically accumulation of partially decayed plant material or organic material in the swamps in the low oxygen environments, and it is basically considered as precursor of coal, यानी कि जिससे कि कोल बनता है। तो ये एक तरह से पूरी तरह से आप कोल भी नहीं कह सकते इसको, बट एक पार्शली डिकम्पोज्ड और डिकेइंग फॉर्म में जो प्लांट मटेरियल है उसको हम पीट कहते हैं। सेकेंड इज योर लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोल है आफ्टर पीट। इट इज बेसिकली सेकेंड फॉर्म ऑफ कोल, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता रहता है और कंडीशंस जो हैं
टेम्परेचर और प्रेशर की वो इंक्रीज करती हैं, कोल की जो फर्दर रिफाइनमेंट है वो होती रहती है। तो इसमें एज कंपेयर टू पीट ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, ज़्यादा एनर्जी कंटेंट है। नेक्स्ट फॉर्म इज योर बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो है वो लिग्नाइट से भी ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का है। इसमें जो कार्बन कंटेंट और एनर्जी कंटेंट है वो पीट और लिग्नाइट से ज़्यादा है, और मॉइस्चर कंटेंट जो है पीट और लिग्नाइट से कम है। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम होता जाएगा, एनर्जी कंटेंट और कार्बन कंटेंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और लास्ट है आपका एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोल जो है वो सबसे फाइनेस्ट और हाईएस्ट ग्रेड है कोल का, विच हैज बीन फॉर्म्ड अंडर इवन मोर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर कंडीशंस। और इसमें जो है एनर्जी और कार्बन कंटेंट दैट इज highest out of these all 4 different types of coal, and the moisture content is least. तो जैसे इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम पीट से एंथ्रासाइट की तरफ मूव करते हैं, हीट एंड प्रेशर इंक्रीज होता है। ब्यूरियल टाइम यानी कितना समय उसको जमीन के नीचे दबे हुए हो गया वो इंक्रीज होता है। कार्बन कंटेंट ऑल्सो इंक्रीजेज, एनर्जी कंटेंट ऑल्सो इंक्रीजेज, लेकिन जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है या जो सल्फर कंटेंट है वो आपका डिक्रीज करता है। So these are 4 types of coal. Now these are various applications of coal, what are the different sectors where the coal is used. So coal is used for the electricity generation in the thermal power plants. Then it is used as a energy fuel for the steel production. It is used in the boilers that are being used in cement industries for the cement production. Then it can be used at household or industrial level for direct heating. और इसके अलावा भी तमाम टाइप के इसके यूजेस हैं इंडस्ट्रीज में, रिफाइनरीज में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, जहां पर कोल को एज ए एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी ए टिपिकल डायग्राम ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का मतलब है जहां पर हम कोल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का उत्पादन करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक सेंटर में एक बॉयलर बना हुआ है। बॉयलर में जो है कोल को जलाकर पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम इन वेपर फॉर्म। अब यहाँ बॉयलर से जो स्टीम जनरेट होगी वो टरबाइन वाले सेक्शन में जाएगी। टरबाइन यानी कि एक पंखा यहाँ लगा रहेगा। जो ये स्टीम है ये इस टरबाइन को रोटेट करेगी। टरबाइन इज अटैच्ड टू द जनरेटर, और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी ग्रिड में दे दी जाएगी। और टरबाइन को रोटेट करने के बाद जो स्टीम आपकी नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें जाएगी, जिसका नाम है कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब है कि कंडेंस करना, यानी कि जो स्टीम फॉर्म में आपका पानी प्रेजेंट है उसको हम वापस वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम जो है कूल वाटर जो है इस कंडेंसर में सर्कुलेट करते हैं, ताकि आपका सराउंडिंग का जो तापमान या टेम्परेचर है वो कम हो जाए और जो स्टीम है वो वापस आपकी जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हम लोग कोल्ड वाटर का यूज करेंगे सर्कुलेट करने के लिए, और जब वाटर वार्म हो जाएगा तो वार्म वाटर को दोबारा से कूल करने के लिए एक कूलिंग टावर इसमें लगा रहेगा, ताकि पानी जो है उसको बार बार ठंडा करके बार बार यूज किया जा सके। और जो वाटर है अगेन उसको फिर हम दोबारा से जो है गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, और ये प्रोसेस जो है आपका चलता रहेगा, और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहेंगे। बॉयलर से जो गैसेस निकलती हैं वो थ्रू द स्टैक आप देख रहे हैं, वहां से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। और स्टैक में जो है डिफरेंट टाइप की एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगी हो सकती हैं, जिससे कि जो गैसेस हैं उसमें जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कुछ हद तक कम करने की कोशिश की जाती है। So this is how a thermal power plant works, and this is how the coal or koila is being used for the generation of electricity. Now coming to the current status. तो सबसे पहले जो है कोल it basically accounts for nearly 27% of the global energy consumption and nearly 36% of the global electricity generation. यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी कंजप्शन है उसका 27% जो है वो कोल से हम लोग मीट विद करते हैं, और 36% जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कोयले के माध्यम से होती है। और द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ कोल इन द वर्ल्ड आर चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द जापान। और चाइना और इंडिया को मिलाकर ही लगभग पूरी दुनिया का लगभग 65% कोयला जो है यहाँ इन दो कंट्रीज में यूज किया जाता है। और ग्लोबली जो है जो कोल के रिजर्व्स हैं, एज पर द एस्टिमेट्स इट इज एस्टिमेटेड दैट अगले 132 या 33 साल तक जो है ये कोल रिजर्व्स जो है रहेंगे, और उसके बाद
ये खत्म हो जाएंगे, बिकॉज इट इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और ये जो है इसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है अर्थ के क्रस्ट में। तो इसलिए 132 या 33 साल तक का कोल हमारे पास बचा है यूज करने के लिए। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जो है दूसरे स्थान पर आता है इंडिया इन केस ऑफ कोल प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। और जो टोटल प्रोडक्शन है इंडिया में दैट इज 893 मिलियन टन्स, ये 2022-23 का डाटा है। और इंडिया में काफ़ी अबंडेंट कोल रिजर्व्स प्रेजेंट हैं और एज पर एस्टिमेटेड दे आर अराउंड 344 बिलियन टन्स। इतना कोल जो है इंडिया में अवेलेबल है। और जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनमें आपके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जो है ये मुख्यतः हैं। और कोल पावर प्लांट जो है लगभग इंडिया की अगर बात की जाए तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ द इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, यानी कि भारत में जितनी बिजली बनाई जाती है उसका 70% जो है वो कोयले के माध्यम से बनाई जाती है इन द थर्मल पावर प्लांट्स। और 2023 में जो है इंडिया हैज ए टोटल कोल बेस्ड पावर जनरेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 210 गीगावाट्स, यानी इतनी जो है टोटल कोल पावर बेस्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया की है, दैट इज 210 गीगावाट्स, मेकिंग इट द लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स इन द कंट्री। सो इट इज द लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया, द कोल। नाउ कमिंग टू इट्स डिसएडवांटेजेस, यानी कि उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला, इट इज ए मेजर एयर पॉल्यूटेंट। तो इसमें डिफरेंट टाइप की जो गैसेज निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑल दीज आर very harmful air pollutants which causes air pollution. Then it is also responsible for various types of air pollution incidences like smog, that is smoke plus fog. Then acid rain. Acid rain means when the acids they get mixed up with the rainwater, and this acid rain is very injurious to human health as well as the other flora and fauna and our whole ecosystem. And then it may also cause different types of respiratory illnesses or respiratory diseases. और कोल की जो माइनिंग है that also leads to different types of environmental impacts like deforestation, soil erosion, displacements, community conflicts. There are range of environmental impacts. Then the high carbon emissions from the coal, they also lead to global warming because the gases like carbon dioxide, they are greenhouse gases basically. Now coming to the second type of non-renewable energy resource, that is crude oil petroleum. So petroleum is often referred as crude oil, and it is also a fossil fuel that is formed from the remains of ancient marine organisms such as phytoplanktons, zooplanktons और algae. तो जैसा हमने कोल के केस में बात किया था, तो कोल जो है वो जो जमीन के ऊपर जो प्लांट्स पाए जाते थे उनसे बना था ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन जो पेट्रोलियम है और जो नेचुरल गैस है, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बनने का जो दोनों का प्रोसेस है वो सेम है। ये दोनों ही जो है समुद्र में पाए जाने वाले जो जूप्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स, यानी कि छोटे छोटे जो जीव हैं, पेड़ पौधे या जो छोटे छोटे जीव वहां पाए जाते हैं, एल्गीज पाई जाती हैं, उनसे ये बने हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स होता क्या है, जैसे आप पिक्चर में भी यहां पर देख रहे हैं, जैसे ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स है इनकी डेथ होती है, ये समुद्र तल पे जो है सेटल डाउन हो जाते हैं। और क्योंकि वाटर में जो है सेडिमेंट्स वो कंटिन्यूसली समुद्र तल के ऊपर सेटल डाउन होते रहते हैं, तो एक तरीके से ये उसके नीचे दफन हो जाते हैं समुद्र तल के नीचे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इसके ऊपर सिल्ट और सैंड की जो लेयर्स है, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर जो है वो जमा होती गई। और टाइम के साथ साथ जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ वेरी हाई प्रेशर एंड हीट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, these sediments or these dead bodies of the zooplanktons or phytoplanktons that was ultimately converted into different thermal or thermochemical processes or biological processes into petroleum and natural gas, और जिसको कि हम आज की डेट में ऑयल एंड गैस डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। तो लगभग 300 से 400 मिलियन ईयर्स लग गए इन डिपॉजिट्स को बनने में, जिनको हम आज की डेट में थ्रू ड्रिलिंग जो है इनको एक्सट्रैक्ट करके एज ए एनर्जी रिसोर्स यूज करते हैं।
नाउ कमिंग टू द रिफाइनिंग ऑफ द दिस क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल जो है उसको इसकी रॉ फॉर्म में हम लोग यूज नहीं कर सकते, उससे बहुत से अलग अलग टाइप के जो है फ्यूल्स और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है दैट बेसिकली टेक्स प्लेस थ्रू द टेक्नोलॉजी, वन टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है कि जो क्रूड ऑयल है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के फ्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, इनका सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो जो क्रूड ऑयल है उसको एक बहुत ही हाई टेम्परेचर में फर्नास यानी कि भट्टी में जो है उसको गर्म किया जाता है, जिससे कि उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके उसको बाद में कंडेंस करके अलग कर लिया जाता है। जैसे सबसे पहले आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो आपकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर ही जो है आपकी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके अलग हो जाएगी, जिसको कि हम घरों में यूज करते हैं एज ए कुकिंग गैस, एलपीजी को हम कहते हैं। फिर 25 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे आपका जो पेट्रोल है, जो गैसोलीन जिसको हम कहते हैं, जो हम गाड़ियों में, स्कूटर्स और बाइक्स में यूज करते हैं, वो अलग हो जाएगा। देन 60 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे नेफ्ता, 180 टू 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे पैराफिन जिसको कि पैराफिन वैक्स कहते हैं, 220 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीजल, फिर फ्यूल ऑयल, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर लास्ट में आपका बिटुमन जिसको तारकोल हम कहते हैं, जो सड़क बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है, इस और वैसलीन पेट्रोलियम जेली भी इसमें होती है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से अलग अलग की जाती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग एंड दिस इज बेसिकली डन through fractional distillation based on their boiling points. Now coming to the current status, so petroleum accounts for nearly 31% of the global primary energy consumption, यानी कि वर्ल्ड की 31% जो एनर्जी नीड्स हैं वो एकमात्र जो पेट्रोलियम है उससे पूरी होती हैं, thus making it the largest single source of the energy. So petroleum is the largest single source of the energy in the world. और जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर हैं उनमें से यूएसए, चाइना, इंडिया और यूरोपियन यूनियन में काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं। तो ये जो है मेनली आपके ऑयल के लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं वर्ल्ड में। और करंट कंजप्शन लेवल्स की अगर बात की जाए जो लगभग 4.53 बिलियन मेट्रिक टन्स है एनुअली। अगर यही कंजप्शन लेवल्स रहते हैं तो अगले 47 ईयर्स में हमारे जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। अगर ये कंजप्शन लेवल्स कम होते हैं तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ सकता है, और अगर कंजप्शन लेवल्स बढ़ते हैं तो ये टाइम पीरियड कम भी हो सकता है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के जो टोटल ऑयल रिजर्व्स हैं एज पर द एस्टिमेट्स दे आर अराउंड 600 मिलियन टन्स। और प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो पिछले कुछ सालों में जो है डिक्रीज कर रही है, और करंटली जो है अभी ये 30 टू 40 मिलियन टन्स के आसपास है एनुअली। और मेजर ऑयल फील्ड्स की बात की जाए जहां से इंडिया में ऑयल निकाला जाता है तो इसमें सबसे मुख्यतः जो है आपकी मुंबई हाई, असम, राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स हैं जहां पर मेनली जो ये ऑयल फील्ड्स लोकेटेड हैं। और इंडिया की जो ऑयल कंजप्शन है वो ज़्यादातर इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो 85 टू 87% जो हमारी क्रूड ऑयल नीड्स हैं वो हम बाहर से तेल का आयात करके पूरी करते हैं, इंपोर्ट करके पूरी करते हैं। एंड इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल इन द ग्लोब। और जो मेजर सप्लायर्स हैं वो मेनली आपके मिडल ईस्ट में हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, इराक है, यूएई है। इसके अलावा रशिया, नाइजीरिया और यूनाइटेड स्टेट्स से भी हम लोग तेल जो है उसका आयात करते हैं। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेट्रोलियम, तो काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे सबसे पहले उसके काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बर्न किया जाता है दैट लीड्स टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं होती हैं। दूसरी जो समस्या है दैट इज ऑयल स्पिल्स, यानी कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर ऑयल के जो कंटेनर्स हैं वो किसी तरीके से ड्यू टू एक्सीडेंट या लीकेज जो है वो पानी में स्पिल हो जाए तो दैट इज नोन एज ऑयल स्पिल। और इसकी वजह से पूरे हमारे जो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स हैं या समुद्र हैं या ओशियंस हैं उनके ऊपर एक ऑयल की बारीक परत जम जाती है, एक स्पिल उसके ऊपर हो जाता है, एक लेयर बन जाती है। और उस लेयर के बनने से जो हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स हैं वो दे आर इम्पेक्टेड वेरी बैडली बिकॉज ड्यू टू दिस ऑयल स्पिल्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर दैट चेंजेस। दूसरा जो हमारे एक्वाटिक बर्ड्स हैं
if their wings are coated with these oil, they are not able to fly anymore. Then it also impacts our aquatic flora and fauna because it leads to the decrease in the oxygen level of our water resources. तो इस तरह के तमाम जो इम्पैक्ट्स हैं वो ऑयल स्पिल्स की वजह से होते हैं. नेक्स्ट डिसएडवांटेज दैट इट इज ए फाइनाइट सोर्स. मींस जो जैसा भी हमने बात की, एट करंट कंजप्शन लेवल जो पेट्रोलियम के रिसोर्सेज हैं वो अगले 47 ईयर्स में लगभग जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सिंगल लार्जेस्ट हमारा एनर्जी रिसोर्स है. लगभग 31% जो है डायरेक्ट एनर्जी नीड्स हम लोग पूरे वर्ल्ड में इससे पूरी करते हैं. तो जब 47 ईयर्स के बाद ये एकदम से खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उस 31% एनर्जी नीड्स है उसको हम कैसे पूरा करेंगे, दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क. देन जियोपॉलिटिकल रिस्क्स आर देयर सिंस पेट्रोलियम प्राइसेस आर वेरी वॉलेटाइल. जो पेट्रोलियम मार्केट्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, कभी वो इंक्रीज होते हैं कभी डिक्रीज होते हैं. दैट विल लीड टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द रीजन्स एंड द कंट्रीज. देन last but not the least, it is air pollution. So burning of this petroleum products that leads to the release of particulate matter, oxides of nitrogen, oxides of sulfur, and all these are very harmful air pollutants that leads to the air pollution, यानी कि वायु प्रदूषण होता है और जिसकी वजह से कई प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो हो सकती हैं. Now the next energy source is natural gas, यानी कि प्राकृतिक गैस. So natural gas is again a fossil fuel that is primarily composed of methane. इसमें जो है 80 to 90% जो मीथेन होती है और कुछ स्मॉलर क्वांटिटी में जो है इसमें इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है और बाकी के जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम जैसी गैसेस भी जो हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं. और इसका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो ऑलरेडी हमने लास्ट पेट्रोलियम के साथ डिस्कस किया था. इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ marine microorganisms like zooplanktons and phytoplanktons over a period of millions of years under the conditions of very high heat and pressure. तो जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बनने का प्रोसेस है वो दोनों का सेम है. Depending upon the location, the natural gas could be of different types. जैसे कि सबसे पहली है आपकी conventional natural gas. तो conventional natural gas जो है वो अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स में होती है जो फ्रीली मूव कर सकती है क्योंकि इसके जो आसपास के जो रॉक सरफेस है दैट इज पोरस रॉक फॉर्मेशंस, जिसमें कि ये इजीली उन पोरस रॉक्स के थ्रू मूव कर सकती है. दूसरा है अनकन्वेंशनल नेचुरल गैस. अनकन्वेंशनल नेचुरल गैस जो है वो ऐसे एरियाज में पाई जाती है जहां पर जो रॉक सरफेसेज हैं वो लेस परमिएबल है, मतलब उसकी जो फ्री मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती. और दूसरा जो है उसको निकालने के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करनी पड़ती है, यानी कि अर्थ क्रस्ट को बाय यूजिंग द हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड्स और वाटर we need to break the earth crust to get these gases basically. So इसमें सबसे पहले जैसे shale gas है. Shale gas is a natural gas that is trapped within the shale rock formation. Shale is a type of sedimentary rocks. Then second is tight gas. It is found in reservoirs with very low permeability, जिनकी permeability भी जो है काफ़ी कम है. And third one is coal bed methane. Coal bed methane जो है mainly हमारे जो कोल के जो डिपॉजिट्स हैं यानी जहाँ पर कोयला पाया जाता है उसके साथ ये पाई जाती है, जिसको हम कोल बेड मिथेन कहते हैं. एंड थर्ड वन इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस. सो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मतलब है जिसको जब हम नेचुरल गैस को कूल डाउन करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ -162 डिग्री सेंटीग्रेड, इट then basically converts into liquid form which makes it easier to transport over longer distances via tankers. Third and the last one is compressed natural gas, जिसको हम CNG कहते हैं. जब नेचुरल गैस को हम हाई प्रेशर जो है इम्पोज करके उसको कंप्रेस कर दें तो दैट इज बेसिकली नोन एज compressed natural gas and it is used as a vehicle fuel. तो इसको हम अपनी गाड़ियों में जो है एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं. So natural gas has different types of applications. It could be used in industries, it could be used for residential heating purpose, it can also be used for the generation of electricity, it could be used for commercial applications, then it could also be used as vehicular fuel in the form of compressed natural gas. Now coming to its current status, so globally जो है natural gas, it accounts for nearly 24% of the global primary energy use, which makes it the third largest energy source in the world after petroleum and the coal. And at current consumption level, which are approximately 4 trillion cubic meters annually, अगर यही consumption levels रहते हैं तो अगले 52 यानी 52 years में जो natural gas के reserves हैं वो लगभग हमारे
खत्म हो जाएंगे। ये कंजप्शन लेवल अगर इंक्रीज होते हैं तो ये इससे जल्दी भी खत्म हो सकते हैं, और अगर कंजप्शन लेवल डिक्रीज होते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा सालों तक भी बचे रह सकते हैं। नाउ कमिंग टू इंडिया स्टेटस, सो इंडिया के जो प्रूवन रिजर्व्स हैं दे आर अराउंड 1.3 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स एज ऑफ 2023, और जो मेजर ये रिजर्व्स हैं या गैस फील्ड्स हैं वो 3 जगहों पे हैं। फर्स्ट इज कृष्णा गोदावरी बेसिन दैट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड भारत पेट्रोलियम। देन सेकंड इज योर मुंबई हाई दैट इज मैनेज्ड बाय द ONGC, and the third is Cambay Basin and Assam. सो इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, बट रफली इट इज अराउंड 30 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअली, और इंडिया का जो टोटल कंजप्शन है उसका अप्रॉक्सीमेट 50% जो हमारी नेचुरल गैस डिमांड है वो हम बाहर से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। वी इंपोर्ट नियरली 42 to 45 मिलियन टन्स एनुअली from different countries like Qatar, Australia, Russia and the United States. And in India, natural gas basically contributes to 6% of the India's total primary energy consumption. तो total primary energy consumption का 6% contribute करती है, और गवर्नमेंट का टारगेट है कि लगभग 2030 तक हमें इसे 15% तक जो है इंक्रीज करना है, because as compared to the petroleum and oil, it is slightly less polluting. Now coming to the advantages and disadvantages. First, the advantages. So it is a cleaner burning fuel, very less amount of emissions are there. It has high energy efficiency, that means with low quantity of natural gas we can generate high amount of energy. There is abundant supply of this natural gas at present, and then it is versatile, means it can be used for different types of applications like power, heating, cooking. It can also be used as vehicular fuel. So there are different types of applications, but other fuels like coal, they don't have that much of applications. So for example, coal cannot be used as a vehicular fuel. So next is low capital cost. It is comparatively cheaper to build the natural gas power plants than nuclear or coal power plants or thermal power plants. Then there are economic benefits of this. It leads to the job creation, revenue from exports and energy security. So it also leads to economic benefits. Now coming to the disadvantages. सबसे पहले जो disadvantage है that is क्योंकि it is a methane. Methane 80 to 90% is methane, and methane is basically a greenhouse gas. So it leads to the problems like global warming and climate change. Then it is again a non-renewable energy source. अगले 52 साल में जो है ये खत्म हो जाएगा. So the resources of natural gas are finite, which are going to end one day. Then there are environmental impacts. The fracking process or hydraulic fracturing process that can basically contaminate the groundwater, and it may also cause earthquake. यानी कि जो इस गैस को निकालने का जो प्रोसेस है that is through hydraulic fracturing, जिसकी वजह से जो है अर्थ क्रस्ट को हमें ब्रेक करना पड़ता है, और इस दैट में लीड टू द कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, और जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं बिकॉज वी आर डिस्टर्बिंग आवर टेक्टोनिक प्लेट्स एंड अर्थ क्रस्ट. नाउ देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज एज वेल. तो जो ज़्यादातर गैसेज ये गैस है उसको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है. देयर में बी द प्रॉब्लम्स ऑफ लीकेज और डैमेज ऑफ दिस पाइपलाइंस. देन प्राइस वॉलेटिलिटी. द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस फ्लक्चुएट्स. तो प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, एंड देयर में बी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और issues in between the regions and countries regarding due to this fluctuation of the prices of natural gas. Then there is limited transportation option. तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए there is required extensive pipelines or LNG terminals. So the transportation options are very limited until and unless we transport it as liquefied natural gas. Again, that will require huge amount of financial and technological aspects. Then it also leads to air and water pollution that emits carbon dioxide and it other pollutants into the atmosphere. Then it may also lead to energy dependency. So जैसे कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर 50% जो नेचुरल गैस है we are importing from other countries. So we are dependent on other countries for our natural gas demand. So that leads to energy dependency. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं परमाणु ऊर्जा.
So nuclear energy is basically the energy that is generated through the nuclear reactions, और nuclear reactions mainly जो है दो प्रकार की होती हैं, nuclear fusion and nuclear fission। न्यूक्लियर फिजन का मतलब है कि जब एक जो न्यूक्लियस है वो टूटकर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस बनाता है, यानी कि जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इसमें यूरेनियम 235 के साथ जब एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है या टकराता है तो वो यूरेनियम 236 बनकर जो है उसके बाद दो एटम्स में ब्रेक होता है। वन इज बेरियम 156 एंड सेकंड इज लैंथेनम 146, और 3 न्यूट्रॉन्स भी इसमें जनरेट होते हैं अलोंग विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दिस इज न्यूक्लियर फिजन, यानी कि एक एटम जो है वो टूटकर दो एटम बन जाते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है जब दो एटम्स जो है जुड़कर एक एटम बनाते हैं, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो दोनों ही वाटर के ही जो है आइसोटोप्स हैं, वो दोनों मिलकर जो है एक हीलियम का जो है मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और साथ में एक न्यूट्रॉन जो है रिलीज हो रहा है, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये दोनों केमिकल रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। जैसे सन का एग्जांपल लें तो सन में जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है दैट इज थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें कि दो हाइड्रोजन जो एटम है वो मिलकर एक हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। सो दैट इज द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी। और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ही मेनली वो रिएक्शन है जिसको कि हम अर्थ में यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। और जो ये न्यूक्लियर पावर है, बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी है, वो डिफरेंट टाइप के रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे बनाई जाती है, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिच या एनर्जी डेंस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। एक छोटा सा 1 इंच का यूरेनियम का टुकड़ा लगभग 120 गैलन ऑयल यानी क्रूड ऑयल के बराबर एनर्जी जनरेट कर सकता है। यही एक छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा जो है लगभग 13,000 to 17,000 स्क्वायर फीट के बराबर नेचुरल गैस के बराबर एनर्जी जनरेट कर सकता है, और लगभग 1 टन कोयला जितनी एनर्जी जनरेट करता है उतनी एनर्जी ये एक छोटा सा टुकड़ा जनरेट कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी यूरेनियम की है वो कितनी ज्यादा है। मतलब जहां पर आपको 120 गैलन क्रूड ऑयल या फिर 1700 स्क्वायर फीट क्यूबिक फीट जो है नेचुरल गैस या फिर 1 टन कोयला यूज करके जितनी एनर्जी जनरेट होती है वो इस एक छोटे से टुकड़े से हो सकती है। Now this is a very simple diagram of nuclear reactor। तो किस प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, एनर्जी जनरेट की जाती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें मेनली आप देख रहे हैं कि दो पार्ट्स हैं, एक कंटेनमेंट बिल्डिंग है और एक यहाँ पर चिमनी आपको दिख रही है, कूलिंग टावर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेनमेंट बिल्डिंग की। कंटेनमेंट बिल्डिंग के अंदर फर्दर आप देख रहे हैं कि देयर इज ए रिएक्टर वेसल। रिएक्टर वेसल के अंदर फ्यूल रॉड्स लगी हैं। फ्यूल रॉड्स यानी कि यूरेनियम की रॉड्स जिसको कि हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। दूसरा इसमें कंट्रोल रॉड्स लगी हैं। कंट्रोल रॉड्स का काम है कि जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यहाँ शुरू होगी तो उसमें जो फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इस रिएक्शन को आगे से आगे बढ़ाते हैं चेन रिएक्शन की फॉर्म में। तो उन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि वो जो चेन रिएक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चेन रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो ब्लास्ट हो सकता है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट इससे हो सकता है। तो कंट्रोल रॉड्स जो है वो नॉर्मली बोरोन की बनी होती हैं, तो ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं, उसकी स्पीड को कम करती हैं। अब इस रिएक्टर वेसल में जो है इस फ्यूल रॉड्स को बर्न एक तरह से बर्न करके या इनसे जो है एनर्जी जनरेट की जाती है, जिससे एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। इस हीट को अब हम ट्रांसफर करते हैं हीट एक्सचेंजर पे, जहां पर आपका वाटर रखा हुआ है, पानी रखा है। तो पानी को बॉयल करते हैं ताकि पानी जो है आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पर एक कूलेंट पंप भी आप देख रहे हैं। कूलेंट पंप का काम है कि जो एक्सेस आपकी हीट है रिएक्टर वेसल के अंदर उसको वहां से निकालना। तो एक्सेस हीट को वहां से निकालने का काम जो है कूलेंट का होता है। कूलेंट के फॉर्म में हम लोग मेनली जो है हैवी वाटर या ड्यूटेरियम को यूज करते हैं।
अब ये जो स्टीम यहाँ पर आपकी हीट एक्सचेंजर पे बनी है, ये स्टीम जो है आपकी टरबाइन में जाएगी, टरबाइन को रोटेट करेगी, टरबाइन यानी कि पंखा, और टरबाइन जो है आपका जनरेटर के साथ अटैच्ड है। जनरेटर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है ग्रिड में सप्लाई की जाएगी। अब यहाँ टरबाइन को रोटेट करने के बाद जो स्टीम बच गई आपकी, वो आपकी नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी जिसका नाम है कंडेंसिंग या कंडेंसर। कंडेंसर में हम लोग अब देख रहे हैं नीचे से कूल वाटर आ रहा है और ऊपर से जो हॉट वाटर है वो बाहर निकल रहा है। तो कूल वाटर को सर्कुलेट करके यहाँ पर जो स्टीम है उसको वापस कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। अब वाटर में कन्वर्ट करके इसको जब दोबारा से वापस फिर हीट एक्सचेंजर में ले जाया जाता है, वहां पर इसको दोबारा से बॉयल करते हैं, दोबारा स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। अब यहाँ पर एक जो चिमनी बनी है दैट इज बेसिकली ये कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर में जो हमने कूल वाटर सर्कुलेट किया था कंडेंसर में, ड्यू टू सर्कुलेशन वो उस वाटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको दोबारा से कूल करना पड़ता है। तो इसलिए उसको कूल करने के लिए कूलिंग टावर बनाया है जिसमें कि पर्टिकुलर हाइट के ऊपर ले जाकर उस पानी को जो है फवारे की फॉर्म में स्प्रे किया जाता है ताकि उसका टेम्परेचर जो है कूल डाउन हो जाए। सो दिस इज हाउ ए न्यूक्लियर रिएक्टर operates, and this is how the electricity is generated by utilizing the nuclear energy. So these are different types of nuclear reactors. Nuclear reactors जो हैं कई प्रकार के हो सकते हैं, इसकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे. So there may be pressurized water reactor, there may be boiling water reactor, pressurized heavy water reactor, light water graphite reactor, then fast neutron reactor, गैस कूल्ड रिएक्टर, देन वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर. तो ये तमाम टाइप के जो हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो अलग अलग टाइप का फ्यूल या अलग अलग टाइप के कूलेंट्स या मॉडरेटर्स यूज करते हैं. So now coming to the current status. So global installed capacity of nuclear energy is around 413 gigawatts. That is through 440 nuclear reactors that are operating in 32 countries of the world. और न्यूक्लियर जो फ्यूजन है दैट इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन मेनी कंट्रीज एंड इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका 10% जो है दैट इज थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी. और इंडिया की अगर बात की जाए तो एज ऑफ 2023 इंडिया हैज ए टोटल न्यूक्लियर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 6780 megawatts. That is through 22 nuclear reactors that are operating in 7 nuclear power plants, and this much amount of energy is roughly approximately equal to 3 to 4% of India's total electricity generation. और ये जो power plants हैं they are mainly located in, they are basically Tarapur that is in Maharashtra, Kundankulam that is in Tamil Nadu, it is the largest nuclear power plant of the India, then Kalpakkam in Tamil Nadu, Kaiga in Karnataka, Narora in Uttar Pradesh and ककरापार इन गुजरात. और इंडिया ने जो है 2031 तक एक टारगेट सेट किया है जिसके हिसाब से जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया की, उसको 22,440 मेगावाट तक इंक्रीज करना है. और एक बात यहाँ और बताना चाहूंगा आपको कि न्यूक्लियर पावर ऑल्दो इट इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी कि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और ये रिप्लेनिश नहीं हो सकता इजीली. लेकिन जितने भी हमारे न्यूक्लियर जो रिजर्व्स हैं अगर उनको पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाए तो न्यूक्लियर पावर अकेले जो है, न्यूक्लियर पावर ही पूरी ह्यूमैनिटी को अगले आने वाले 4 बिलियन ईयर्स तक जो है वो हमारी जो एनर्जी डिमांड है उसको पूरा कर सकती है. दैट इज मेनली ड्यू टू द न्यूक्लियर पावर्ड हाई पावर डेंसिटी ऑफ दिस न्यूक्लियर फ्यूल्स. तो बाकी के एनर्जी रिसोर्सेज ना भी हों तब भी अकेले न्यूक्लियर पावर जो है अगले आने वाले कई बिलियन ईयर्स तक जो है हमारी एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर सकती है. बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस और देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर. द फर्स्ट वन इज सेफ्टी कंसर्न्स. सो सेफ्टी कंसर्न्स, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें अक्सर जो है लीकेज की समस्या हो जाती है या फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है. जैसे इतिहास अगर न्यूक्लियर एनर्जी का देखा जाए तो उसमें 2 बहुत बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, जैसे कि चिर्नोबाइल एक्सीडेंट दैट हैपेंड इन 1986 एंड फ्यूकुशिमा एक्सीडेंट दैट हैपेंड इन द ईयर 2011 इन जापान. तो ये बहुत ही बड़े लेवल के न्यूक्लियर डिजास्टर्स थे. तो इस तरह के एक्सीडेंट्स की वजह से इट इज ऑलवेज ए मैटर ऑफ कंसर्न. सेकेंड इज हाई कॉस्ट एंड लॉन्ग डेवलपमेंटल टाइम्स. So building of a nuclear power plant requires huge amount of financial inputs as well as it is highly time consuming. Then third and the most important is
डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो जो भी वेस्ट यहाँ से निकलता है, ऑल्दो इट इज वेस्ट बट इट इज हाईली रेडियो एक्टिव, मीन्स कि डिफरेंट टाइप की जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है उसमें से निकलती रहती हैं, एंड दिस रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर डिजास्टर्स फॉर मैनकाइंड, अदर फ्लोरा एंड फोना एंड टू आवर एंटायर इकोसिस्टम। इसलिए इस न्यूक्लियर वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल जरूरी है। एक सॉल्यूशन इसका जो है डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरीज हो सकती हैं, जिसमें कि इस न्यूक्लियर वेस्ट को अर्थ के नीचे जो है डीप अंडरग्राउंड सरफेसिस पे उसको ब्यूरी कर दिया जाए, उसको दबा दिया जाए, बट स्टिल अभी ये काफी इनिशियल स्टेज पे है। और इस तरह की एक रिपोजिटरी जो है फिनलैंड में, सिर्फ फिनलैंड में ही एकमात्र एक ऐसी रिपोजिटरी है, दैट इज ओंकालो रिपोजिटरी, दैट इज ऑपरेशनल राइट नाउ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पब्लिक ऑपोजिशन। पब्लिक ऑपोजिशन यानी कि लोग इसको इजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ड्यू टू देयर सेफ्टी कंसर्न्स, मेनली ड्यू टू न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, ड्यू टू रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, और जो लॉन्ग टर्म पर इन्वायरमेंट पे इसके इम्पैक्ट रहते हैं, उसकी वजह से ऑलवेज देयर इज पब्लिक अपोजिशन। कोई भी कम्युनिटी नहीं चाहेगी कि उनकी विसिनिटी में इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएं, बिकॉज दे आर हाईली डेंजरस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। So day by day our energy needs are increasing at national level as well as globally. So there are many reasons for our growing energy needs. First reason is population growth, यानी कि जो हमारी जनसंख्या है वो continuously बढ़ रही है। We have already crossed 8 billion mark and by 2050 the population will cross 9.7 billion. So with the increasing population our energy demands for our daily activity will also be increasing. Second one is economic development, यानी कि economic development के साथ our the living standards will increase, and better living standards means better or uses of better and modern amenities. And modern amenities जितनी ज़्यादा सुविधाओं का हम लोग इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, सो उतनी ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होगी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण की वजह से भी जैसे जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं कंटिन्यूसली डेवलप कर रही हैं, दे ऑल्सो वांट टू बिकम डेवलप्ड कंट्रीज। सो जैसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है चाइना में, इंडिया में या बाकी की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वी द एनर्जी डिमांड्स ऑफ दीज कंट्रीज आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फॉर different sectors like mining, industries, and then production, manufacturing, and other things in industrial sector. Next is urbanization. Urbanization यानी कि शहरीकरण। तो all over the world approximately 68% of the population is expected to live in the cities by 2050, यानी कि 68% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो शहरों में निवास करेगी 2050 तक। और शहरों में जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पॉपुलेशन रहेगी, सो वी विल बी रिक्वायरिंग मोर एंड मोर एनर्जी फॉर बिल्डिंग दीज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर बिल्डिंग द हाउसिंग एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। Then next sector is transportation. So there is heavy energy demand that is rising with the increasing or expanding transportation sector. So whether we talk about air transport, रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, सो पॉपुलेशन के साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो भी इंक्रीज कर रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जो हमारी टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो रही हैं, आज हर इंसान के पास जो है मोबाइल फ़ोन है और स्मार्टफोन्स हैं। अगर आप पुराने फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स थे एक बार चार्ज करके वो एक हफ्ता चलते थे, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती थी। लेकिन आज जो आप फ़ोन यूज़ करते हैं, सुबह चार्ज करने के बाद आपको शाम को उसको दोबारा से चार्ज करना पड़ता है, यानी कि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। पुराने टाइम में आप पुराने पीसी यूज़ करते, कंप्यूटर यूज़ करते थे जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो आपके कंप्यूटर भी काम करना बंद कर देते थे, या फिर थोड़ी देर के लिए आपको सीपीयू से जो है वो यूपीएस से बैकअप मिल जाता था। लेकिन आज की डेट में जो आपके लैपटॉप्स हैं या फिर जो आपके जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, दे नीड कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई, प्लस दे आर वर्किंग फॉर मेनी आवर्स फॉर बाय चार्जिंग द बैटरीज। सो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं, इवन जो हाउस होल्ड अप्लाइंसेस हैं, हम सभी घर में जो है फ्रिज है, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ऑल दीज थिंग्स दे रिक्वायर energy. So with technology advancements, the growing energy needs are also growing. Next is electrification. तो जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई,
तो उसके साथ साथ हमारा जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो भी इम्प्रूव हुआ। पहले जो है सभी जगहों पे बिजली नहीं होती थी, हो सकता है कि कुछ जगहों पे बिजली बिल्कुल ना हो या कुछ जगहों पे बिजली आती हो, कुछ घंटे के लिए आती हो, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है 24 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमें चाहिए। इवन जो आज गाड़ियां बन रही हैं, व्हीकल्स बन रहे हैं, इवन प्लेन्स बन रहे हैं, दे आर इलेक्ट्रिक पावर्ड। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है ज़माना आ गया है, तो इसलिए हर चीज़ के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो ए एनर्जी, सो our energy needs are also increasing due to this electrification of our technologies. Now the next part is energy scenario and energy security. So energy security का मतलब है कि जो हमारी energy production है that should always be more than our energy consumption. That means we are सिक्योर्ड और एनर्जी सिक्योर्ड। और करंट एनर्जी सिनेरियो की अगर बात की जाए, इंडिया में पहले बात करते हैं, तो इंडिया में जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी शेयर है दैट इज हार्डली 9%। जो जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सोलर पावर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, सो ओनली 9% एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड रेस्ट 91% ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज दैट वी आर यूजिंग इन इंडिया दे आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। न्यूक्लियर एनर्जी को भी हमने इसमें नॉन रिन्यूएबल में ही काउंट किया है, बट इसको अगर हम रिन्यूएबल में भी काउंट करते हैं तब भी ये जो है 11% से ज्यादा नहीं होगा। और पूरे वर्ल्ड की भी अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में भी जो रिन्यूएबल एनर्जी शेयर है दैट इज हार्डली 12% एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इज 88%। जैसे आप देख रहे हैं जो मेजर सेक्टर्स हैं वो नेचुरल गैस, कोल और ऑयल है। और इवन अगर न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम इसमें काउंट कर देते हैं तब भी हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी शेयर है दैट इज हार्डली 18%. रेस्ट 82% ऑफ द एनर्जी इज फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. सो दिस इज द current energy scenario. Now what are the opportunities and what we need to do in the coming time? So first is to improve the energy efficiency, यानी कि हमें अपनी एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी ताकि जो एनर्जी कंजप्शन है वो कम हो और एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी मतलब कम से कम एनर्जी में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं. सेकेंड इज टू एक्सपेंड आवर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. जितने भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, सोलर है, विंड है, टाइडल है, ओटेक है, जियोथर्मल है एंड इवन न्यूक्लियर पावर, और दूसरे जैसे हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी सोर्सेज हैं या बायो इथेनॉल बेस्ड बायोमास एनर्जी सोर्सेज हैं. इस तरह के एनर्जी रिसोर्सेज को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा. तो जो ये 9 और 11 और 20% के जो हमारी फिगर्स हैं इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर कर हमें 80 to 90% तक लेके जाना पड़ेगा. बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं या कोल रिजर्व्स हैं या नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50-60 साल तक ही हमें एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं एट करंट कंजप्शन लेवल्स, और उसके बाद जो है हमें कोई ना कोई अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. तो इसलिए ग्रेजुअली हमें जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी शेयर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 50-60 साल बाद जब अचानक से ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो हम एकदम से ये सारे एनर्जी रिसोर्सेज इनको एक्सपेंड नहीं कर सकते. इसलिए हमें आज अभी से ही इन चीज़ों को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल innovations. So we need extensive research and development activities in energy technologies that may lead to innovations in efficiency, then in storage and grid integration. तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास एनर्जी स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो डेवलप नहीं हुई है. जैसे जो बिजली है दैट मे बी प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड, बट जो एनर्जी स्टोरेज का जो मेथड्स हैं वो अभी भी हमारे काफ़ी प्रिमिटिव हैं. जैसे आपने सोलर एनर्जी का ही एग्जांपल लिया, हम यहाँ ले लेते हैं. तो एक सोलर लाइट अगर आपके आंगन में लगी है तो दिन को वो चार्ज होता है सोलर पैनल से, और उसमें एक बहुत बड़ी सी बैटरी लगी रहती है. तो रात के टाइम वो बैटरी जो है आपको फिर पावर सप्लाई करती है. तो उस बैटरी का जो साइज है वो साइज अभी तक हम लोग डिक्रीज नहीं कर पाए हैं. तो इस तरह की जो है टेक्नोलॉजीज हमें डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि एनर्जी जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जा सके, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटीज को इंप्रूव किया जा सके, और ग्रिड इंटीग्रेशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज की वो की जा सके. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एनर्जी कंजर्वेशन. इसके लिए लोगों को जागरूक करना, शिक्षित करना जरूरी है. बिकॉज एनर्जी कंजर्व्ड इज एनर्जी जनरेटेड, यानी कि हम बिजली या किसी भी टाइप की एनर्जी को जो है फिजूल खर्ची उसकी ना करें, उसको वेस्ट ना करें, उसको बचा कर रखें
क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड इज एनर्जी जनरेटेड. सो दैट वाज ऑल अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज. I hope you liked the lecture on non-renewable energy resources, and if you found this lecture useful, do subscribe to Environment Matters and also recommend it to your friends. Thank you.